If you remember our discussion from the previous classes, we were talking about elasticity and the tax share of elasticity. Remember this? I told you that elasticity is shared between the consumer and the producer. This is what we were discussing before we had an electric failure. I told you कि कंज्यूमर का शेयर होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एंड प्रोड्यूसर का जो शेयर होगा वो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, विच गिव्स अस 4 सिनेरियोज कि डिमांड इलास्टिक हो सकता है, सप्लाई इलास्टिक हो सकता है, डिमांड इन इलास्टिक हो सकता है, सप्लाई इन इलास्टिक हो सकता है. एंड इन ऑल दीज 4 केसेस यू वुड हैव टू ड्रॉ कि सपोज एक टैक्स लगता है तो टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो कंज्यूमर पे कितना आएगा और प्रोड्यूसर पे कितना आएगा. डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटीज यू विल हैव ईच एंड एवरी केस. सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कि डिमांड की इलास्टिसिटी का क्या इम्पैक्ट है, सप्लाई की इलास्टिसिटी का क्या इम्पैक्ट है, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों इनइलास्टिक हैं, या अगर हम बात करें दोनों के दोनों इनइलास्टिक हैं, so the burden will share equally. This is what we had discussed. इसमें आप एग्जाम्पल भी बना सकते हो. सपोज मैंने डिमांड को भी इनइलास्टिक बना दिया और सप्लाई को भी इनइलास्टिक बना दिया, एंड देन आई इंक्रीज द टैक्स. सो दिस शेयर इज, इफ यू सी, दिस शेयर इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द सेलर एंड द बायर. दिस इज व्हाट वी हैड अंडरस्टूड. रिमेंबर, इसको ड्रॉ कर लो. बिना ड्रॉ करे करोगे आगे जाके प्रॉब्लम आएगी. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन just by intuition understand it. You would have to draw certain diagrams. Then suppose if I go to a particular case like this, think about if the supply is inelastic and if the demand is elastic, what kind of burden sharing will be there. Just draw it out and then see. Don't guess, and don't see logic बाद में देखना, पहले डायग्राम बना के देख. If the demand is elastic and the supply is inelastic, I am putting a tax on the seller, and then you can see the impact of tariffs, you can see the impact of GST. GST में कौन सी चीज का पास ऑन होगा, कौन सी चीज का पास ऑन नहीं होगा. These are practical considerations. बना, and you can work it out mathematically as well also. Mathematically भी कर सकते. You just need to see this, and you can see I am making demand elastic and my supply is inelastic. Now if I increase the price, see प्राइस कम से इंक्रीज हुआ है और जो सप्लायर को, जो प्रोड्यूसर को जो शेयर करना पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है. सो बिकॉज थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर हैज टू मेनी ऑप्शंस. So in that case, the buyer is not going to take any kind of tantrums. The buyer is going to say, if you increase the price, then I'm going to shift to another person. So this is where this kind of analysis is important. Then also we have already seen this, and also try to see what will happen if both of them are elastic. Check this case. Both of them are elastic. Inelastic का तो हमने देख लिया कि equally share कर लेंगे. Equal share, but something other than equal share. Think of this. In this particular case, सरकार को कितना सारा revenue हो रहा है. All of this is government का revenue. Now think in elastic terms कि what has happened. Price कम change होगा, सब कुछ कम होगा, but सरकार को भी revenue बहुत कम होने वाला है elastic items में. If you draw elastic demand, elastic supply, increase the price, see burden तो है, but burden share होगा, but सरकार का revenues पे बहुत ज़्यादा कोई impact नहीं आएगा. Government will collect less revenue because of the quantity decrease. So this is what looks like. So these are the 4 scenarios that you need to go through. Now we had talked about these scenarios. यहाँ पर ये scenario बात करी थी हमने. Then we had a payroll tax. You can think of a payroll tax as well. Elasticity and tax incidence. So this is what we were discussing. That suppose we have a elastic supply and an inelastic demand. हमने ये वाला केस बात करी कि हमारी इलास्टिक सप्लाई है, इनइलास्टिक डिमांड है. देन व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ अ टैक्स. अगर हमारी सप्लाई ऊपर चली गई, देन द बायर्स विल पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, द बर्डन, एंड द सप्लायर्स will pay a less amount of tax.
Then the opposite case we have already talked about. This is the opposite case. अगर हमारी inelastic supply और elastic demand है. In this particular case, the supply goes to the left. The buyers pay this much amount, and the sellers will have to bear the incidence will be heavy on the sellers. Then, so this is with respect to this particular chapter. Now I want you to try certain numericals. I'll also help you out with the numericals. Now comes the final portion of the fact, which is where you are going to discuss about consumer surplus, producer surplus and something called as deadweight loss. जो मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी आप मार्केट मैकेनिज्म से कहीं और जाओगे, if you are not following market mechanism, there is going to be some amount of loss in the economy. मार्केट्स का सबसे बड़ा काम होता है क्लियर, मार्केट्स का सबसे बड़ा काम होता है कि एफिशिएंट रिजल्ट देना, बट एफिशिएंट रिजल्ट देना. सो दैट इज व्हाई प्राइसेस आर सो इंपॉर्टेंट. प्राइसेस, व्हाट डज प्राइस, आई टोल्ड यू दिस अर्लियर एज वेल. प्राइसेस क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्राइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है मार्केट के अंदर. नॉट जस्ट दैट, क्वालिटी, ओके, मोर देन दैट. जब हम शुरू में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही क्या पढ़ते हैं? इट्स अबाउट स्कैरसिटी. रिसोर्सेज आर स्कैर्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्राइस का है टू बेसिकली फाइंड आउट द स्कैरसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. बट कई चीजों के मैंने आपको आर्टिफिशियल स्कैरसिटी भी दिखाई दी. फॉर एग्जांपल डायमंड्स, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ डायमंड्स एंड आई टोल्ड यू टू वॉच अ मूवी कॉल्ड ब्लड डायमंड. रिमेंबर दिस मूवी? सो अब पॉइंट इज कि प्राइसेस जो हैं दे आर शोइंग यू स्कैरसिटी ऑफ अ कमोडिटी. अगर आप ट्रू मार्केट मैकेनिज्म पे नहीं जाओगे, there is going to be some kind of loss to the society, and we are going to understand what is that loss that is going to be there to the society. But before that we need to understand कि consumer को क्या benefit होता है और producer को क्या benefit होता है. To understand this, let us see this particular case. Now how does a demand curve operate? Now let's take the case of this particular individual. Suppose मैं कहता हूं ये मेरा डिमांड कर्व है. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? इट इज द अमाउंट अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ प्रोडक्ट माइनस द अमाउंट दैट ही एक्चुअली पेज फॉर इट. नाउ लेट्स टेक द केस हियर. यहां पर क्या है कि यहां पर से क्वांटिटी ऑफ एल्बम्स हैं जो बेसिकली एल्विस प्रेस्ली की कुछ एल्बम है जो लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है. एंड एक इंसान जो है एक हायर प्राइस पे खरीद सकता है, एक इंसान लोअर प्राइस पे खरीद सकता है, एक इंसान नीचे वाले प्राइस पे. टू गिव यू अ बेटर एग्जांपल, दिस इज अ लिटिल एलियन एग्जांपल फॉर यू. कई बार आपने देखा है कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो और आपको लगता है यार बहुत अच्छी डील मिल गई. हैव यू ऑल गॉट दैट फीलिंग लाइफ में? कम पे करते हैं. स्पेशली कब होता है ऐसा? कब ऐसा फील हुआ है? कभी देखा है? जैसे फॉर एग्जांपल आई यूज बिफोर बाइंग समथिंग स्पेशली फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे आई विल टेल यू अबाउट माय रीसेंट एग्जांपल. देयर आर दीज गम्स कॉल्ड एज न्यूरो. हैज एनीवन ट्राइड इट? ट्राई करा? Let me, किसने सुना है न्यूरो के बारे? Let me show you न्यूरो. It came on the American this thing Shark Tank. It's a product which was launched on American Shark Tank and it's doing really well across the world. Now what this does is, see, these are the न्यूरो gums जो मेरा daily usually intake के लिए होता है. Now it has certain good things. It has caffeine, तो caffeine का I need intake. Then there are certain elements which are useful for your brain development, B6, B12. So all of these gums I keep having every day. I'm very used to it. It's very addictive as well. So अब यहाँ पर क्या है कि you enter your this thing number and you get 10% off. But is this the only way that you can get a discount? और कैसे मिल सकता है? That's a different kind of surplus. उसके बारे में मैं बताऊंगा कंपेयर करके कहाँ पर सस्ता है. ये न्यूरो की वेबसाइट है, इससे सस्ता आपको नहीं मिलना चाहिए. अगर आप Amazon पे जाओगे, Amazon will have a markup unless Amazon has a different deal altogether. For example, even if you take protein, तो प्रोटीन के लिए जैसे द होल ट्रूथ, इफ यू हैव एवर ट्राइड दिस पर्टिकुलर प्रोटीन और एनी चॉकलेट्स ऑफ दिस, तो उसकी वेबसाइट पे सबसे सस्ता मिलना चाहिए आइडियली, तो क्योंकि वो सप्लायर मेन सप्लायर है. और क्या करोगे? दैट कुड बी वन. ओके, कूपन कोड्स. The first thing that I would do is I would just go here and say Neuro Gums coupons, and you have various websites. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव ग्रैब ऑन जो आपको देगा, लिंक देगा. देन यू हैव सिंपल कोड्स एंड बहुत सारी हैं.
जो आपको अलग अलग डील दे देंगे। एंड जो सेम प्रोडक्ट मैंने पहली बार से किसी ने रेफर किया था तो उससे 500 रुपए का मिला, मुझे 300 रुपए का मिल रहा है, तो मेरी एबिलिटी, मैं इतना एडिक्टिव हूँ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कि मैं 500 रुपए दे सकता हूँ। अगर ये 500 रुपए का भी देगा तो मैं 500 रुपए का लूंगा, बट बिकॉज it's providing me a coupon, I am basically getting it for a lesser price. The same thing is for say the whole truth अगर आप पहला बार ऑफर लेते हो, पहली बार अगर साइन इन करते हो तो आपको 20% ऑफ देता है, बट सेम नंबर पे नहीं देगा, तो यू यूज डिफरेंट नंबर, किसी और का नंबर यूज करके आप कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली व्हाट माय विलिंगनेस टू पे। इफ आई हैव टू शो यू कि मार्केट प्राइस ये है, सपोज दिस इज द मार्केट प्राइस दैट इज at which I strike a deal, ये सपोज 300 रुपए, बट मेरी विलिंगनेस टू पे उससे ज्यादा थी। I could have paid say 500 rupees. I could have paid 500 rupees. Someone could have paid 400 rupees. But ultimately मार्केट का प्राइस जो है वो 300 रुपए का है। तो जो डिफरेंस है between what I am willing to pay and what I actually pay, कई बार आपको चीजों की वैल्यू ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग। दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। टू ड्रॉ इट इन अ डिफरेंट डायग्राम, लेट्स से सपोज ये मेरा डिमांड कर्व है। नाउ व्हाट आई से इज दिस इज द मार्केट प्राइस। नाउ पहली क्वांटिटी के लिए मैं इतना पे करने के लिए रेडी था फॉर फर्स्ट क्वांटिटी। For second quantity, I was ready to pay so much. For third quantity, I was ready to pay so much. For fourth quantity, I was ready to pay, and for fifth, this much. अब my willingness to pay was much higher. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पहली जो इसने वो बनाई उसके लिए कोई इंसान इतना पे करने के लिए रेडी था, बट एक्चुअली में वो पे इतना ही कर रहा है, पे वो 300 रुपीज ही कर रहा है। सेकेंड जो क्वांटिटी मार्केट में आई उसके लिए लोग इतना पे करने के लिए रेडी थे, थर्ड के लिए इतना पे करने के लिए रेडी थे, फोर्थ के लिए, बट अल्टीमेटली मार्केट प्राइस इज दिस। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू पे एंड व्हाट यू आर विलिंगनेस टू पे, एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द डिमांड कर्व इज शोइंग यू योर विलिंगनेस टू पे। डिमांड कर्व बता रहा है कि आप कितना पे करने के लिए रेडी हो, और मार्केट प्राइस जो है वो कम है। सो दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज बेसिकली शोइंग यू व्हाट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस, द डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड वर्सेस एक्चुअल प्राइस। नाउ conceptually अगर ये समझ में आए, let's read it through, then you will be able to get it better. Now let's see this example. Suppose you get a mint condition recording of Elvis Presley first album. Elvis Presley सुना, हमारी जनरेशन ने कैसे सुना? चलो, so the first time I heard about Elvis Presley was through a movie. Then I got it was Tom Hanks, Forrest Gump. Again a movie perhaps that you can add to your this thing, जिन्होंने नहीं देखी हुई, और जिनको उसका घटिया वर्जन देखना है तो लाल सिंह चड्ढा देख सकते हैं। Then now, but one movie that I'm really excited, last week I saw its promo, was the Ramayana. If anyone has seen the especially I told you that I am into a lot of music directors, so it's Hans Zimmer and A.R. Rahman, so something that I am willing to pay a lot of money to watch. Now point is, let's say this case that because you don't care for Elvis music, you decide to sell the album by auctioning it off. Suppose आपको एक वो मिली, क्या कहते हैं, एक फर्स्ट एल्बम मिली, एक प्राइज्ड पोजेशन है, and you really don't like it, you are willing to auction it. Now 4 of Elvis fans come to the auction: Whitney, Ella, Maria and Karen, and they basically all want the album. They have set their limits on the amount that they are willing to pay for it, and that is the beauty of auctions. If you see, गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पे अब ऑक्शन शुरू कर दिया है। कहाँ ऑक्शन देखते हो आप? कौन सी न्यूज फॉलो कर रहे हो भाई? मे बी
I'm not very encouraged with the kind of news that you're following. This is what you are getting on your feed. Have you heard of the GEM portal? ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक DDA ने ऑक्शन किया घर, सुना है? एक ही घंटे में सारे घर बिक गए. ठीक है, तो ऑक्शन इसलिए किया जाता है कि आप अपना रिजर्वेशन प्राइस ऊपर डाल दो. There's this very beautiful movie on this. Watch this movie. There's a movie called War Dogs. जरूर देखना है मूवी. Beautiful movie. It's on auctions. ठीक है, एंड ऑक्शन के थ्रू हाउ स्मॉल बिजनेसेस का फायदा उठा के दे गेट इनटू ऑल द डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टफ. स्पीकिंग ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, there is a company that you should start following. It's called the Palantir. Thiel, Peter Thiel. Yes. Read about this particular company. This company is secretly now running the world. So how tech industry is now entering into all. Why do you think इतनी सारी wars शुरू हो गई हैं भाई आसपास? And you will see all of this is drawn towards this particular company, and the maximum and this company in the last 2 years has replaced Ford in the indexes of US. ठीक है, US आपको स्टॉक इंडेक्स का आइडिया पता है ना क्या होता है? When I say Sensex, what do you mean? 30 companies on the basis of market value, market capitalization, कि जो इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनीज हैं उसमें आ गया. तो वहां पर अगर मैं कह रहा हूं S&P 100 के अंदर कोई कंपनी आ रही है और फोर्ड को रिप्लेस कर रही है, जो 150 साल पुरानी कंपनी है, और ये कंपनी पिछले 10-12 सालों में ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई है और पिछले 4-5 सालों से ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है, उसको रिप्लेस किया. सो जस्ट गो टू यूट्यूब, रीड अबाउट Palantir. Now, and when reading Palantir, I would suggest you to read about the Rothschilds as well. Interesting family, and you'll get a lot of conspiracy. So I'm also into a lot of conspiracy theories. So I like watching all of these. So maybe you can read about this and the conspiracy theories that are revolving. A triangle shaped thing, Illuminati. Okay. So read about Illuminati when you are reading all of this. Okay. So अब यहाँ से अब रियल वर्ल्ड में फिर कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड में चले जाते हो. Where to stop is your take. But now coming back to this particular situation, कि आप ऑक्शन कर रहे हो, और ऑक्शन करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप ट्रू वैल्यू लोगों से निकाल सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अगर ऑक्शन वाले सारे लोग एक साथ मिल जाए तो ही दिक्कत होती है. और इंडिया में ये शुरू इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द 2G स्कैम. इंडिया में 2G स्कैम सुना है? छोटे थे आप लोग तो. एंड रीड अबाउट सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है, who basically was championing the case of 2G scam. So अब उसकी वजह से सरकार ने और कोर्ट्स ने कहा कि यार हर चीज का ऑक्शन करो. ठीक है, आप कोल कर रहे हो उसका ऑक्शन करो, स्पेक्ट्रम बेच रहे हो उसका ऑक्शन करो. ऑक्शन से क्या होता है कि आप मैक्सिमम वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं. इट्स एक्चुअली गेम थ्योरी इन प्ले. राइट नाउ आई कांट टीच यू दैट, बट एक्चुअली में उसमें गेम थ्योरी चल रही होती है. नाउ अब दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट. सो विटनी इतना पे कर सकती है इसके लिए, एला इतना कर सकती है, मरिया इतना कर सकती है, कैरन इतना कर सकती है. सो दीज आर द बायर्स विलिंगनेस टू पे हाउ मच शी वैल्यूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नाउ टू सेल द एल्बम यू शुड बिगिन द बिडिंग प्रोसेस एट अ लो एट से 100, because at 100 all the 4 buyers will be willing to pay. In fact, this is how the housing also starts. अगर आपने DDA का, अगर आपने हाउसिंग देखा हो, कभी कोई ऑक्शन में जाना, ठीक है, ऑक्शन और किस चीज का देखा होगा आपने, उसका सरफेसी के ऑक्शन होते हैं. ठीक है, एज अ लॉयर यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. दीज आर बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं, बहुत अच्छे रेट पे आपको चीजें मिलती हैं ऑक्शंस में. IBC के अंदर लिक्विडेशन के अंदर आपको बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी. सो एज लॉयर्स यू शुड ऑलवेज बी अवेयर अबाउट IBC के लिक्विडेशन प्रोसेसेस एंड दूसरा सरफेसी के लिक्विडेशन प्रोसेसेस. इनमें जरूर अपने आई रखना अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो, और आपके पास थोड़ा सा भी कैपिटल पड़ा है. यू कैन बिड, यू कैन गेट थिंग्स एट लोअर प्राइसेस. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, सो आप क्या करते हो, जैसे अगर किसी की चीज की ऑक्शन रख रहे हैं तो एक बेस प्राइस होता है. ठीक है, और आपकी एंट्री भी अर्नेस्ट मनी दे के आती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके घुस जाएगा इस ऑक्शन में. आप नॉन रिफंडेबल अमाउंट भी दोगे, एक रिफंडेबल अमाउंट भी दोगे, फिर जाके आप उस ऑक्शन में जाओगे. और इसमें एक
अमाउंट होता है जिससे आपकी बिड इंक्रीज हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं किसी ने 1 लाख रुपए की, आप सपोज कोई घर बिक रहा है 1 करोड़ रुपए का है बेस प्राइस, तो ऐसा नहीं है कि आपने कहा 1 करोड़ 1 रुपया, ऐसे तो फिर पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ये तो उसमें मिनिमम अमाउंट होता है कि अच्छा आप सिर्फ 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए से इंक्रीज कर सकते हो, उसके बिना नहीं कर सकते। सो दीज आर, एंड द सेम थिंग इज आईपीएल। व्हाई फॉरगेट ऑल ऑफ दिस? आईपीएल में भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ही तो होती है। कई बार आपको बहुत अच्छा प्लेयर सस्ता मिल जाता है। थिंक ऑफ अ प्लेयर जो वैल्यू फॉर मनी रहा हो। पैट कमिंस वेरी एक्सपेंसिव, अभिषेक शर्मा कुड बी समवन, रिंकू सिंह, ठीक है, आशुतोष यादव, सो सूर्य रघुवंशी। तो ऑल ऑफ दीज आर गुड प्लेयर जहां पर इनकी मिनिमम बेस वैल्यू से आपने शुरू करा, बट उनकी जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा था। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी इन ऑल दीज फील्ड्स there are so many computer analysts who are betting, who are standing there and giving those calculations. सब कुछ होता है इसमें। and read about, you will find a very interesting story where how BCCI got to know कि अच्छा यार इससे पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। read about the story how South Africa offered money to the BCCI for sponsoring rights। जब पहली बार ये sponsoring rights की बात आई थी तो साउथ अफ्रीका ने उनको कुछ $70,000 या $1 लाख के लिए बात करी थी, और उन्होंने कहा था चलो ठीक है 70,000 ऑफर किया, उन्होंने कहा नहीं 1 लाख कर दो, उन्होंने 1 लाख बोल दिया। और बीसीसीआई को लगा कि ये पूरी सीरीज का है, तो जब पैसा मिला तो उनको पर मैच का मिला, तो उनको अच्छा लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा पैसा बनाने का तरीका है। एंड दैट आफ्टर दैट ललित मोदी took the IPL where it is. So that's the contribution of Lalit Modi in Indian cricket. So यहां पर हर किसी की विलिंगनेस टू पे है ना। हर आदमी कहता है कि यार इसके बाद मैं ऑक्शन नहीं करूंगा, इसके बाद मैं और कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। विच रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर मूवी दैट यू नीड टू ऐड टू योर दिस थिंग लिस्ट। इट इज कॉल्ड एज मनी बॉल। देखिए किसी ने मनी बॉल? एक इंसान ने देखी है, ब्रैड पिट। मनी बॉल, ऐड दिस टू योर लिस्ट गाइस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन स्पोर्ट्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स इन कोर्ट केसेस, बहुत आराम से यू कैन यूज स्टैटिस्टिक्स इन कोर्ट केसेस। हर आदमी प्रिडिक्टेबल ही तो है, स्टैटिस्टिक्स अनप्रिडिक्टेबल चीज को ही तो प्रिडिक्टेबल बना रहा है, सो यू कैन यूज इट। सो नाउ all of them wants to do this, and the bidding stops when Whitney bids for 800 and or slightly more, and at this point all of them basically stop. So your ability to in a particular bid, what should be your aim? अगर आप 5-6 लोग हो और से क्रिकेट में से विराट कोहली के लिए बिड कर रहे हो 5-6 लोग, what should be your aim? और सोचो, that will not maximize your profit. ये भी एम हो सकता है इन अ मल्टीप्लेयर। व्हाट यू हैव टॉक्ड अबाउट इज अ मल्टीप्लेयर सिनेरियो। मल्टीप्लेयर सिनेरियो मुझे अपने आप को मैक्सिमाइज भी करना है और दूसरे को मिनिमाइज भी करना है। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे के पैसे खर्च करवाने बेकार चीजों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से घटिया प्लेयर बताओ आईपीएल में, ओवररेटेड, बेन स्टोक्स। मतलब वो दुनिया में हर जगह काम करता है बट वो आईपीएल में आके नहीं करता। या मैक्सवेल, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए छक्के मार रहा होता है हर जगह एक एक पैर पे, बट वो आईपीएल में आके उसको पता नहीं क्या हो जाता है। सो अगेन योर आइडिया इज नॉट जस्ट टू मैक्सिमाइज योर ओन बेनिफिट बट ऑल्सो मिनिमाइज द बेनिफिट ऑफ अदर्स, बट दैट्स इन अ मल्टीप्लेयर सिनेरियो। लेट्स टर्न इट ओनली इन अ सिंगल बिडिंग केस। सिंगल बिडिंग केस में व्हाट शुड बी योर एम? कैसे होगा उसमें? सपोज मेरा 1,000 रुपए है, मैं मैक्सिमम $1,000 दे सकता हूं किसी प्लेयर के लिए, 999 पे भी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, but that is not a good scenario. You should, I mean, you will cry when the actual bids will come in. What should be your scenario? What should you do? You should actually think of what is the maximum that the other person is willing to bid for. And once you know what is the maximum that you can bid for, उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दो, because at that moment आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज। सपोज इसने विटनी ने क्या किया, अगर विटनी ने 801 बिड कर दिया, एट 801 शी विल नॉट बिड, शी विल नॉट बिड, शी विल नॉट बिड। नाउ यू आर गोइंग टू गेट 200 का आपके पास एक, या 199 का आपके पास एक रिजर्व आ जाएगा। सो दिस इज what you have to preempt in these particular cases.
I will teach you more of this when we are going to talk about Contract Act next semester में. Contract Act के अंदर, Contract Law के अंदर जब आप bid कर रहे हो तो आप या कोई dispute हो गया contract के बीच में, आपने मेरा कोई काम करना था और आपने नहीं किया, उस केस के अंदर कैसे हम एक ऐसे अमाउंट पे पहुंचेंगे जिससे हम कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं. So we will try to prove it through math. This is the right amount at which you should settle. So now the benefit is, this was Whitney's willingness to pay, this was Ella's willingness to pay, this was Maria's, and this was Karen's. And if the price is set at this, all of this is going to Whitney and this is going to be our consumer surplus. This is what we are going to talk about. So now, so this is Whitney's consumer surplus, and if the price is 700, then this is going to be the surplus. And similarly, how a lower price raises the consumer surplus. Let's read about that. Now, suppose मैं कहता हूं अभी क्या है, प्राइस जो है मेरा ये है P1 and all the consumers जो हैं उनको ये willingness to pay थी और उनको अपना कम पे करना पड़ रहा है. So this is the consumer surplus. Now suppose मैं कहता हूं कि price decrease हो गया. We have reduced the price from this to this. Then see what will happen. Now initial consumer surplus ये था, तो ये वाले लोगों को भी तो प्राइस का फायदा हो रहा है नीचे जाने का, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको भी तो फायदा हो रहा है. सो दिस इज द एडिशनल सरप्लस दैट इज अवेलेबल टू द न्यू कंज्यूमर्स, टू द ओल्ड कंज्यूमर्स. जो ओल्ड कंज्यूमर्स हैं वो उनका विलिंगनेस टू पे इतना था, अब उनको कम पे करना पड़ रहा है. तो दिस इज व्हाट यू ऐड टू द ओल्ड वंस एंड दिस इज व्हाट यू ऐड टू द न्यू वंस, दिस न्यू ट्राइंगल. सो क्योंकि ये नए कस्टमर्स हैं, सो when you reduce the price, you are going to increase the consumer surplus by a certain amount. Now, what does the consumer surplus in itself determine? So what does the consumer surplus measure? It basically measures what the buyers perceive about a commodity versus what they actually are getting. So it is the amount that the buyers are willing to pay for a good minus what they actually pay for it. So consumer surplus measures the benefit that buyers derive from the market as buyers themselves perceive it. कि आप क्या perceive कर पा रहे हो. आपको एक डील मिल गई, 500 रुपए की चीज आपको 300 रुपए में मिल गई. This is what your perception is. This is what your valuation in your head is. यार ये इतना होना चाहिए. For example, I'll give you another example of this. You must be using this. Have you used Zomato Gold? Yes. सबने यूज किया है. तो जब उसके पास Zomato Gold से जब पेमेंट करते हो, डोंट यू थिंक कि बहुत अच्छा फील आता है कि यार जैसा भी मैंने 4000 रुपए का बिल था एक रेस्टोरेंट का, मैंने उसको 1800 रुपए दिया, तो बड़ी अच्छी सेटिस्फैक्शन आई कि इतना सारा खाना खाया, इतना अच्छा खाना खाया, बट पे कम करना पड़ा. सो दैट योर परसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड वर्सेस व्हाट यू एक्चुअली पे फॉर इट. So this is what you have in this particular case. So you can read this. Then comes the next aspect. जैसे कंज्यूमर का सरप्लस है वैसे एक प्रोड्यूसर का भी सरप्लस होता है. अब प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या है, सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या है. So the value of everything a seller must give up to produce a particular good, that is the cost. Now if you see, just like we had a consumer surplus, we also have a producer surplus. ये आपका सप्लाई कर्व है. Now suppose this is the price, striking price. This is the price in the market. Now supply curve क्या बता रहा है? Supply curve आपको बता रहा है, supply curve basically tells you the cost of production including all costs. What is the cost of producing a particular commodity? Now at the first unit उसकी कॉस्ट ये है बनाने की, सेकेंड यूनिट की कॉस्ट ये है, थर्ड यूनिट की कॉस्ट ये है, फोर्थ यूनिट की कॉस्ट ये है, एंड से सेवेंथ यूनिट की कॉस्ट ये है. एज यू कीप ऑन मेकिंग मोर amount of commodity, your cost is going to increase because your inputs are going to increase and you're going to have diminishing returns. जिनको diminishing returns पता है, तो धीरे धीरे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, इसीलिए आपका सप्लाई करो अपवर्ड स्लोपिंग. बट जो मार्केट प्राइस है, अगर मैं कह रहा हूं मार्केट प्राइस हर कमोडिटी का यही है, तो यू आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ सरप्लस. आपको पहली कमोडिटी बनाने के लिए सिर्फ कॉस्ट लगा इतना, बट आपको मिल कितना रहा है? आपको इतना मिल रहा है पहली कमोडिटी. पहली सेकंड वाली के लिए आपको
कॉस्ट लगा आपका इतना बट आपको मिल इतना रहा है, थर्ड वाली के लिए आपको इतना लगा, आपको मिल इतना रहा है, फोर्थ वाली के लिए इतना. सो सिमिलरली all of this particular portion, this entire triangle is called as producer surplus. सेवेंथ कमोडिटी पे नहीं मिल रहा आपको, वहां पर जाके खत्म हो गया. वहां पर जो आपकी प्राइस ऑफ प्रोडक्शन है उतना ही आपको प्राइस मिल रहा है. एंड द ब्यूटी अबाउट मार्केट प्रोसेस इज कि मार्केट का जो प्राइस होता है वहां पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस एग्जॉस्ट हो चुके हैं. दैट इज वेयर the market price is actually attained. अभी producer surplus पे वापस आता हूँ, but let me just show you. I'm just skipping a few steps and showing you something. This is your demand, this is your supply, and this is the market strike price, P star, Q star. And if you see this market पे जब आप equilibrium पे पहुंच रहे हो, equilibrium पे आपका ये आपका पूरा consumer surplus आ गया. अब कंज्यूमर सरप्लस और इंक्रीज नहीं हो सकता है और ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया. सो यू गेट योर कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एंड बोथ हैव बीन एग्जॉस्टेड. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस विदाउट रिड्यूसिंग द अदर. म्यूचुअल गेन्स मार्केट में खत्म हो चुके हैं. एक और इसका एक और डेफिनेशन है कि म्यूचुअल गेन्स आर ओवर. म्यूचुअल गेन्स का मतलब है कि दोनों एक साथ नहीं जीत सकते आप. It's now become a zero sum game. Have you heard of this term, zero sum? So if for one to win, the other has to lose. This is the scenario that you've reached. So market में equilibrium ये दिखा रहा होता है. But let us understand. We'll come back to consumer surplus and we'll come back to that equilibrium. But what is this producer surplus? Producer surplus actually talks about the difference between what producer gets versus what is his कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस उसको मिल कितना रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो प्रोड्यूसर सरप्लस है. लेट अस आल्सो गो थ्रू दिस. नॉट एग्जैक्टली प्रॉफिट, उसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं. हाँ, नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस इज द अमाउंट दैट द सेलर इज पेड फॉर द गुड, जो उसको मिल रहा है, माइनस द सेलर्स कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट. प्रॉफिट के टर्म्स में देयर आर अदर थिंग्स दैट वी आल्सो नीड टू सी. नाउ सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉस्ट जो है सेलर की इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, एंड यूजिंग द सप्लाई कर्व टू मेजर दिस. तो यू हैव दीज डिफरेंट सप्लाईज एंड इफ यू सी दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट दिस इज व्हाट योर प्रोड्यूसर सरप्लस इज. एंड अगर आप प्राइस इंक्रीज करते हो, जैसे हमने डिमांड के केस में देखा था, तो इनिशियल जो सप्लायर्स हैं उनको इतना फायदा हुआ और जो न्यू सप्लायर्स हैं उनको इतना फायदा हुआ. सेम चीज है, एग्जैक्ट सेम. नाउ मार्केट के अंदर एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं. दिस वी कैन टॉक आफ्टर अ ब्रेक. नाउ लेट्स कंटिन्यू गाइस. सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दैट मार्केट में प्राइसेस का रोल जो होता है एफिशिएंसी का होता है. एंड एफिशिएंसी कॉम्पिटिटिव मार्केट्स जो होती हैं, जिसको आप आगे जाके परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यू विल रीड अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड यू विल सी व्हाट परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज. सो द डिजायरेबल आउटकम इज दैट एवरीवन इज वर्किंग एफिशिएंटली. नाउ टू गिव यू एनालॉजी ऑफ एफिशिएंसी, जो आप पूरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो एक रात में कैसे रिवाइज हो रहा है? पहली बार भी पढ़ रहे हो कई बार. दैट मीन्स यू हैव द कैपेसिटी टू डू इट. ठीक है, it's just that you don't utilize it on an everyday basis. So whatever you call it, but at the same point of time you have the ability to do it. So this is exactly when you are not being efficient. Now the idea is that how do suppose मैं कहता हूँ there is a hypothetical group, a committee of benevolent social planners. These planners are all powerful, all knowing, well intentioned, and they want to increase the well-being of the entire country. पूरी सोसाइटी में सबका well-being increase करने की कोशिश कर रहे हैं. What should they do? Just let buyers and sellers find an equilibrium price of their own, or the planners can enhance the well-being by somehow altering the market outcome. तो जरूरी नहीं है कि market outcome जो है usually efficient होता है, but it is not necessary so. Can you think of a
market outcome which is necessarily not efficient. Consumer और producer सबको फायदा हो रहा है, दोनों अपने आप ही फायदा कर सकते हैं, बट वो एफिशिएंट नहीं है. थिंक ऑफ अ सिनेरियो, थिंक ऑफ सरोगेसी, ऑर्गन ट्रेड. ऑर्गन ट्रेड में गरीब आदमी विलिंगनेसली अपनी ऑर्गन देना चाह रहा है. सरोगेसी में वूम्ब ऑन रेंट है. विमेन अपने बाय हर ओन विलिंगनेस इज बेसिकली अलाउइंग हर सेल्फ टू रेंट दी वूम्ब, और डिमांड भी है. तो क्या हमें ये अलाउ कर देना चाहिए? क्या ऑर्गन ट्रेड अलाउ कर देना चाहिए? सो नाउ दीज आर इश्यूज. देन यहां पर पब्लिक पॉलिसी का इशू आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज को एफिशिएंसी के हिसाब से देखना है, आपको पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से भी देखना है. सो दिस इज टू आंसर दिस क्वेश्चन, द प्लानर्स फर्स्ट डिसाइड टू गेज द वेल-बीइंग ऑफ अ सोसाइटी, and the well-being of the society is input into well-being is the sum of the consumer and producer surplus, जिसको हम बोलते हैं total surplus. We already know consumer surplus is what? Consumer surplus is the price that a consumer pays versus what is his willingness to pay. And the producer surplus is basically what the producer is actually getting minus his cost. So the idea of maximization is to maximize the total surplus. So if I say the consumer surplus is value to buyers minus amount paid by the buyers, and the producer surplus is amount received by the sellers minus the cost, then basically I can say, adding these consumer and producer surplus, I can say this, and can you see that something will cross out? The amount paid by the buyer has to be equal to the amount received by the sellers. So this will cross out. So that means the total surplus is value to the buyers minus the cost to the sellers. And efficiency is basically a property regarding resource allocation, जो आपका total surplus जो है उसको maximize करता है. जहां पर आपने total surplus को maximize कर, उससे ज्यादा surplus बन ही नहीं सकता. consumer plus producer का surplus ज्यादा बन ही नहीं सकता. उसको आप efficient outcome कहोगे. That's an efficient outcome. Now you will be surprised to know economics में efficient outcome बहुत सारे हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो डिजायरेबल हो. डिजायरेबल चीज अलग है, एफिशिएंट चीज अलग है. एफिशिएंसी हो सकता है आपको कहे कि एलएलबी की कॉस्ट, बीए एलएलबी की कॉस्ट 2,80,000 रुपए. दिस इज व्हाट यू आर पेइंग, योर जूनियर्स आर पेइंग, या आपके केस में 2 लाख रुपए. दिस इज व्हाट एफिशिएंसी रिक्वायर्स. बट जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज एफिशिएंसी से देखनी है, आपको इक्विटी और सोशल कंसर्न्स भी लेके आना है. तो हो सकता है आपकी क्लास में कुछ लोग जीरो अमाउंट दे पे कर रहे हैं. दिस इज वेरी पॉसिबल. तो वहां पर हम बाकी सारी चीजें ले आते हैं. So that is where when we go into microeconomics we talk about first welfare theorem and second welfare theorem. तो यहाँ पर welfare theorems आती है, but we are not getting into that. But what we say is, if the resource allocation maximizes total surplus, economists say that allocation exhibits efficiency. So efficiency and allocation is insufficient if a good is not being produced by sellers with the lowest cost. And अगर कोई भी चीज जो है वो अपनी लोएस्ट कॉस्ट पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, या बायर अपने मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा पे कर रहा है, इट इज नॉट एफिशिएंट. सो लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स. देन देयर इज अनदर थिंग, इक्वालिटी. सो इक्वालिटी जो मैं आपको बता रहा था, एफिशिएंसी वुड आल्सो से इन अ 2% सोसाइटी, अगर मैं 2% की सोसाइटी बनाऊं, एक इंसान को सब कुछ दे दूं, वो भी एफिशिएंट है. व्हाई? बिकॉज एक से लेने का मतलब दूसरे को देना. हमने क्या बोला था? म्यूचुअल गेन नहीं पॉसिबल होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई टॉक. ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है. देखो, आई एम सेइंग एफिशिएंसी इज नो म्यूचुअल गेन पॉसिबल. दिस इज हाउ आई एम डिफाइनिंग एफिशिएंसी. नाउ यू एंड योर सिबलिंग आर देयर. केक जो है वो एक पीस है. एक इंसान को भी पूरा केक मिल जाए तो भी वो एफिशिएंट है. इट्स एन एफिशिएंट आउटकम. व्हाई? बिकॉज अगर आपको कुछ शेयर करना पड़ा तो आपका शेयर जाएगा ना. आप अपना शेयर कम करके किसी और को कुछ दे रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल इन अ सोसाइटी, अगर मैं कहता हूं मुकेश अंबानी के पास पूरी की पूरी नेशनल इनकम है, सारा पैसा देश का उसके पास है, दैट इज ऑल्सो एन एफिशिएंट आउटकम मार्केट के हिसाब से. बट एफिशिएंसी हैज टू बी डिफरेंशिएटेड विद इक्विटी. इक्विटी के अंदर बाकी सारी चीजें हम लेके आते हैं. सो
Equality is property of distributing the economic prosperity uniformly among the society. So don't confuse these two terms. मार्केट में कई चीजें एफिशिएंट ही होनी चाहिए. प्राइसेस एफिशिएंसी दिखाता है, तभी हमारा एलपीजी का कॉस्ट जो है अगर 1000 रुपए तो 1000 रुपए होना चाहिए. जो गरीब इंसान है उसको हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, अगर आपने ये कर दिया, थिंक अबाउट इट. अगर मैंने मार्केट में 900 रुपए का सिलेंडर है और मैंने दो प्राइसेस कर दिए, एक 600 रुपए का गरीब लोगों के लिए, एक 900 रुपए का अमीर लोगों के लिए, देयर विल ऑलवेज बी इंसेंटिव टू चीट. गरीब के अकाउंट में तब दूं जब उसने सिलेंडर खरीद लिया है. दिस इज व्हाट डीबीटी डज. इनको हम बोलते हैं कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स. दिस वाज वेरी पॉपुलराइज्ड बाय ब्राजील. ब्राजील से शुरू हुआ था कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स. तो वहां पर अब और इंडिया में भी ये होता है कि जिसमें अब डीबीटी के थ्रू आप लोगों के बैंक अकाउंट में देते हो और तब देते हो जब वो यूजेज हो रही है. क्योंकि अगर आपने दो सिलेंडर कर दिए, एक 600 रुपए का, तो ये 600 रुपए वाला 700 रुपए में अमीर आदमी को बेच के आ जाएगा. आपने क्या किया, मार्केट का प्राइस डिस्टॉर्ट कर दिया, इनएफिशिएंसी ले आए मार्केट के अंदर. तो प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करने दो स्केर्सिटी. एंड अगर आपको इक्विटी को देखना है तो फिर आप कुछ और चीजें करो, जिसको हम बोलते हैं एंडाउमेंट चेंज करना, कि उस आदमी को थोड़ा सा अमीर बना दिया. What I've just told you is what you'll not study it ever, but this is the summary of the first welfare theorem, the second welfare theorem. पहली वेलफेयर थ्योरम कहती है कि मार्केट में प्राइसेस को मत छेड़ो, प्राइसेस को वही रहने दो. और सेकंड वेलफेयर थ्योरम कहती है कि अगर आपका इक्विटी का कंसर्न है तो जो गरीब आदमी है उसको पैसे दे दो उसके अकाउंट में, बट प्राइसेस वही रहने दो, सो दैट मार्केट में एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों आ जाए. सो this is what I mean I just skipped all of that. I just told you what the efficiency theories talk about, and this is what I had talked about कि ये consumer surplus है. Difference between, ये अगर equilibrium price है तो difference between what is your willingness to pay and your actual payment, and this is your producer surplus, your cost versus what you are actually getting. Now competitive markets, what we have reached is that two insights. Competitive markets allocate supply of goods to buyers who value them the most, and competitive markets allocate demand for goods to sellers who produce them at the lowest cost. तो competitive markets ensure करेगी कि जो suppliers of good हैं वो उन लोगों को बेचें जो सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं उनको, और competitive markets ये भी ensure करेगी कि जो इंसान क्या कहते हैं, the sellers, the demanders of the goods also take it from the producers who sell it at the lowest cost. This is what the competitive market forces will ensure. Now the idea is, can the social planners raise the well-being by increasing or decreasing the amount of quantity? The answer is no, because competitive markets produce quantity of goods that maximize the sum of producer and कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर वेलफेयर. तो अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है तो किसी को भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है मार्केट्स के साथ. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एडम स्मिथ टॉक्ड अबाउट, जिसको आपने शायद से पहले पढ़ा हो, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट. सुना ये वर्ड, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट. इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट basically talks about that do not let anyone enter into the market, do not allow any interference in the market. The market will automatically take care of all the efficiency gains, जिसको हम ब्रॉडली फ्रेंच एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं laissez faire. You might have heard about this French term, that leave to do, let people do as they will. This is one of the basic tenets of classical theory. जब मैं आपको क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, लोगों को छोड़ दो, वो अपने आप ही कर लेंगे. एज कंपेयर टू कीनीशियंस, जब हम कीन्स के बारे में बात करेंगे तो कहता है कि मार्केट में आओ, मार्केट अपने आप क्लियर नहीं करेगी. तो कीन्स वर्सेस क्लासिक्स के बारे में बात करेंगे हम यूनिट 2 के अंदर. तो वहां पर वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज लेज़र फेयर वर्सेस व्हाट इज मार्केट इंटरवेंशन. और देखो कि मार्केट में इक्विलिब्रियम आ भी कैसे रहा है, हाउ इज इट कमिंग. If I talk about Q1 quantity पे the value to the buyers is this much for this much amount, and the cost to sellers is much lesser. And because the cost is much lesser as compared to the buyer, the producer will produce more. Because value to the buyer जो है वो बहुत ज्यादा मिल रही है, वैल्यू कह रहा है कि यार मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू है और आपकी कॉस्ट कम है. So there will be an intention to push towards more production. And if you see
So value of buyers is greater than the cost of sellers. So more production will happen. If you see on the right hand side, the cost to the sellers is much more than the value to the buyers. So the producer will start to produce less, and you will ultimately reach this particular equilibrium. So the society will automatically reach its equilibrium. Then as I told you that not everything is seen through efficiency point of view. क्योंकि अगर एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देयर विल बी अ ऑर्गन मार्केट एज वेल. आई टोल्ड यू ऑर्गन मार्केट एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी वर्ल्ड में. कहां कहां? चाइना, पाकिस्तान, ईरान. आप यू शुड पिक अप अगर आपको कभी भी ऑर्गन की जरूरत हो. थिंक अबाउट कंट्रीज जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन करते हैं. नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, और जहां जहां कैपिटल पनिशमेंट है, जहां जहां मैसिव एग्जीक्यूशंस होते हैं, उन सारी कंट्रीज के अंदर ऑर्गन ट्रेड बड़ा रैम्पेंट होगा. और दूसरी जहां गरीबी है, इन सारी जगहों पे आपको ऑर्गन ट्रेड मिलेगा. सो it's just that it is under the carpet now. So you can read about this particular thing. Now the conclusion is market efficiency and market failure. That at times what will happen is that the markets will also fail. We conclude that the markets are efficient. We made several assumptions about it, but at times these assumptions are not true. फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, उसका इंपैक्ट सिर्फ मेरे पे है. दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट अजम्पशंस दैट आई मेक. सपोज मैं, इफ आई एम स्मोकिंग हेयर, देन आई एम गोइंग टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. दैट्स एन अजम्पशन दैट आई मेक. But that assumption is wrong because I'm going to have a negative impact on your health because of second-hand smoking. So this is something called as externalities. एक्सटर्नैलिटीज के केस में मार्केट फेल होगी. इनफैक्ट आई विल शो यू वेरियस केसेस जहां मार्केट फेल होगी. नाउ व्हाई विल मार्केट्स फेल? मार्केट्स विल फेल फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर कॉमन प्रॉपर्टीज आएंगी. सपोज मैंने कहा कि एक लैंड है, उस लैंड को कोई भी यूज कर सकता है. जैसे कॉमन प्रॉपर्टी, कैन यू थिंक ऑफ मोर कॉमन प्रॉपर्टीज, जिसको कई बार हम ग्लोबल कॉमन्स भी कहते हैं. हर्ड ऑफ ग्लोबल कॉमन्स? जैसे अंटार्कटिका इज ग्लोबल कॉमन, और outer atmosphere basically space is global common. but global common पे किसने राज करना शुरू कर दिया स्पेस पे? not just America. Chinese are there, but more than Chinese. Elon Musk, guys, Elon Musk सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है वो ग्लोबल कॉमन्स का. कैसे? स्टारलिंक के पास इतने सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो I mean it's launching so many satellites. तो उसने वो ग्लोबल कॉमन वाला पूरा एरिया को पूरा कैप्चर कर लिया है. ये so many satellites. तो अगेन सिमिलरली द कॉमन एग्जांपल इज कोई फिशिंग पॉन्ड हो गया, रिवर हो गई, वो भी तो ग्लोबल कॉमन है, या आपके लिए कॉमन रिसोर्स है. क्योंकि यमुना पे किसी का राइट नहीं है, गंगा पे किसी का राइट नहीं है, हर कोई आके उसको पल्यूट करे जा रहा है. यही आपके घर का पॉन्ड हो, देख लो कोई आके पल्यूट कर जाए. सो ग्लोबल कॉमन्स या कॉमन रिसोर्सेज के साथ में क्या है कि उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन जरूर होगा, बिकॉज नो वन इज रिकॉग्नाइजिंग द ओवर यूजेज ऑफ दैट. द सेकंड इज कई बार जहां कंपटीशन फेल करेगा. अभी तक हम परफेक्ट हम कह रहे हैं कि लोग कॉम्पीट कर रहे हैं आपस में, बट जरूरी थोड़ा ना कि लोग कम्पीट करेंगे. हैव यू हर्ड ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड AB InBev? सुना है इस कंपनी के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू ड्रिंक? इलीगली तो करते ही हो बहुत लोग. None of you? Okay. Now, this company basically owns a lot of brands of alcohol. You might be thinking कि मैं कोरोना खरीद रहा हूं तो वो होगार्डन का कंपटीशन, तो एक्चुअली कंपटीशन ये सारे पीछे से एक ही कंपनी. Volkswagen फॉर एग्जांपल, ये सारी एक ही कंपनी है. सिमिलरली आई एम फॉरगेटिंग दैट ब्रांड which owns a lot of eyewear, Luxottica. आपको लगेगा कि मैं रेबैन खरीद रहा हूँ, अरमानी खरीद रहा हूँ, ओकले खरीद रहा हूँ, सारा लक्सॉटिका का. पीछे से ओनरशिप देखोगे सब लक्सॉटिका. मतलब आई केयर की ब्रांड के अंदर 80-90% मार्केट इसी के पास है. तो जब 80-90% मार्केट उसी के पास है तो कंपटीशन रह कहां गया? तो जहां कंपटीशन नहीं है वहां पर अगेन मार्केट फेल करेगी, क्योंकि फिर प्रोड्यूसर आपको एक्सप्लॉइट करेगा अलग अलग तरीके से. वो सेगमेंट कर देगा कि इस मार्केट के लिए ये मेजर प्लेयर, दूसरी मार्केट के लिए मेजर प्लेयर, तीसरी मार्केट के लिए मेजर प्लेयर. देन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जहां पर आएगी वहां पर भी मार्केट फेल होती है. द बेस्ट एग्जांपल इज योर अपकमिंग प्रोफेशन. अब जो नॉर्मल आदमी है उसको क्या पता कि लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है. आप सेम चीज
10,000 रुपए में भी कर सकते हो, 10 लाख रुपए में भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं। सो दिस इज अगेन इन्फो, और सेम डॉक्टर्स के केस में भी होता है। सेम अगर आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पे चले जाओ, वहां पर चले जाओ, तो आपको सेम चीज 100 रुपए की मिल जाएगी। अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लो 1,000 रुपए की ले लो। तो से टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गवर्नमेंट का टेस्ट कराओ तो आपको फ्री में मिल जाएंगे या बहुत कम पैसों में मिल जाएंगे, और प्राइवेट में टेस्ट कराओ तो आपको 1,000 रुपए खर्च कर। देन इनकम्प्लीट मार्केट्स, कई जगह ऐसी मार्केट होंगी जो कंप्लीट ही नहीं है, कवरेज ही पूरी नहीं है। नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू दीज मार्केट्स। हेल्थ केयर, एजुकेशन, these are again areas जहां मार्केट फेल हो जाएगी, because not everyone can afford it. And finally you have externalities, things like pollution, कि जहां पर आप कुछ कर रहे हो बट उसका इंपैक्ट किसी और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर हो रहा है। आप अपना करके चले गए, फॉर एग्जाम्पल कानपुर के अंदर हम टैनरीज चला रहे हैं, सुना होगा आपने कानपुर के बारे में, बट उसका इंपैक्ट लोअर रिपेरियन स्टेट को पड़ता है। सो ऑल ऑफ दिस हैज इम्प्लीकेशंस। सो ये मार्केट फेल होती है, और फिर जहां मार्केट फेल होती है वहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन की जरूरत होती है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से, दैट मार्केट के अंदर आपकी मार्केट पावर अगर किसी के पास ज्यादा आ जाए तो मार्केट फेल कर जाएगी, फिर गवर्नमेंट को आके इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करती है फिर मार्केट पावर को लेके? रेगुलेशंस और एग्जांपल। That's extreme. It happens, but extreme है। कौन सी? I might need to read on that. Then और सोचो, have you heard of CCI, Competition Commission of India? यही तो काम है उसका। मार्केट में वो कहता है कि मैं रेगुलेट कैसे करूंगा। So this is again मार्केट रेगुलेशन, और किस तरीके से करोगे। Then I told give you the example of pollution, which is externality. Then you have other cases market failure, कि मार्केट फेल कर रही है, जहां पर आपके प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए बट बने नहीं रहा। अगर आपको एजुकेशन इसी तरीके से लग दिया जाए 2 लाख रुपए की पर ईयर, हार्डली इंडिया में 5% लोग एजुकेशन अफोर्ड कर पाए। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एजुकेशन। यू आर पेइंग द ट्रू मार्केट प्राइस, बट एट दिस ट्रू मार्केट प्राइस थिंक ऑफ हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड इट, लेस देन 5% ऑफ इंडिया। सो उस केस में फिर मार्केट इंटरवेंशन, फिर उस केस में आप कहते हो कि नहीं पब्लिक पॉलिसी की जरूरत है, गवर्नमेंट आके, फिर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी गुड्स, प्राइवेट गुड्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की एंड प्राइवेट गुड्स की। इनफैक्ट आई कैन शो यू दिस, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग केस फॉर यू। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर करिकुलम, बट आई एम स्टिल टीचिंग यू बिकॉज दिस विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। There are certain things which are called public goods. Public का मतलब क्या होता होगा, पहले तो ये सोचो। What does public mean in economics? This is a special meaning to public. For example, public finance. Think of what public means. Any idea? Any guesses? The opposite of public is private, by the way. Now you should get a hint. State. When we say public, in economics we mean government. Goods which are provided by government usually. Now there is a characteristic of public goods. पहली characteristic of public good is it is non-excludable. आप किसी को हटा नहीं सकते। For example, एयर या डिफेंस, क्या आपको डिफेंस की सर्विसेज ज्यादा मिल रही है मेरे से? जो डिफेंस की सर्विस आपको मिल रही है वो मुझे मिल रही है। सामने बाहर रोड है, वो रोड आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ। हवा है, आप भी वही ब्रीथ कर रहे हो, मैं भी वही ब्रीथ कर रहा हूँ। देयर इज नो डिफरेंस। Your consumption cannot exclude mine. This is one major characteristic of public good. समझ में excludability क्या होती है? The other thing is non-rival. आपके करने से मेरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप पार्क जा रहे हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको डिफेंस सर्विसेज मिल रही है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मेरी कंजम्पशन कोई राइवल थोड़ी ना, मैं और आप राइवल नहीं। As compared to a last piece of pizza between you and your sibling, rivalness. या तो आप खाओगे या मैं खाऊंगा। So once you have these two things, then you have this thing. Then you also have, तो ये example हो गया, ये आपका example हो गया। अगर if you see non-excludable है, if it is something is non-excludable and non-rival, then it comes under public good. और अगर कोई चीज rival है, think about something is rival and excludable. मेरा मोबाइल फोन वो rival भी है, ठीक है, या तो अगर एक ही आईफोन है तो ये जो आईफोन है वो राइवल है, या तो आप यूज करोगे या मैं यूज करूंगा, मेरा अपना है। आई कैन एक्सक्लूड यू।
I can say that you will not use my phone. And rival इस तरीके से हो सकता है कि if there is only one phone, then only one of us can enjoy it. Then you have things which are non-excludable but rival in nature. For example, air, या जो मैं आपको global commons बताया, या मैंने आपको एक पॉन्ड दिया, आपके घर के पीछे का गांव के पीछे का पॉन्ड, नॉन एक्सक्लूडेबल है, सारे जाके यूज कर सकते हैं, बट सारे जाके यूज करेंगे तो ओवरफिशिंग कर देंगे. ओवरफिशिंग कर देंगे तो क्या होगा, राइवल बन चुका हो. जैसे इंडिया और श्रीलंका में लड़ाई होती रहती है बीच बीच में, फिशरमैन की सुनी होगी आपने, तो वो एक्चुअली एरिया है नॉन एक्सक्लूडेबल राइवल. देन यू हैव एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवल. थिंक ऑफ अ केस एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल. नेटफ्लिक्स, क्या आपके यूज करने से मेरे पे इंपैक्ट पड़ रहा है? अगर आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, मानोस यूज कर रहे हो, क्या मेरे कंजम्पशन में फर्क आ रहा है? बट क्या कंपनी एक्सक्लूड कर सकती है आपको? बिल्कुल कर सकती है. सो एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, यूजली दीज आर द केसेस जहां पर आपको नेचुरल मोनोपोलीज मिलेंगी जिनकी कॉस्ट गिरती हुई जाएगी. नेटफ्लिक्स का देखो, नेटफ्लिक्स की कॉस्ट क्या है? इनिशियल कॉस्ट ही है सिर्फ AWS की कॉस्ट. AWS समझते हो? होस्टिंग, Amazon वेब सर्विसेज. तो होस्टिंग की तो कॉस्ट है उनकी. उसके बाद तो 1 लाख लोगों को देना हो या 2 लाख लोगों को देना हो, उसकी तो कॉस्ट गिरती हुई जाएगी. सो दिस इज आपकी OTT और ये सारी की सारी यहां पर आता है. एंड देन यू हैव पब्लिक गुड्स which is basically non-excludable and non-rival. So these are the kind of goods that you have in an economy. These are the only 4 kinds that can exist. These are called as pure public goods and these are called as pure private. तो कई जगहों पे जहां मार्केट फेल कर रही होती है वहां पर आपको पब्लिक, सरकार को आके प्रोवाइड करनी पड़ती है वो चीजें, क्योंकि सरकार को पता है इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, सरकार विमेन कॉलेजेस क्यों खोलती है या विमेन के लिए कट ऑफ क्यों कम होती है? इफ यू गो टू एनी IIM तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि इफ यू आर फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड एंड यू आर अ फीमेल, यू कैन गेट इनटू अ गुड IIM एट से 92-93 परसेंटाइल. बट इफ यू आर अ मेल एंड यू आर एन इंजीनियर, 99 पे भी शायद से ना मिले. आप आर्ट्स में भी 95-96 पे मिल जाएगा, बिकॉज दे वांट पीपल फ्रॉम दैट बैकग्राउंड इन देयर कोर्सेज. नहीं तो इट्स प्रिडोमिनेंटली इंजीनियरिंग. एंड दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम विद एग्जाम्स लाइक UPSC. ये एग्जाम जो है वो ओरिएंटेशन है पूरी की पूरी आर्ट्स का, बट इंजीनियर्स भर के बैठे हुए हैं उस क्लियर करने के लिए उसके अंदर. सो दिस इज, सो मार्केट फेलियर जब होता है ऐसे केसेस के अंदर, फिर गवर्नमेंट आके कहती है कि ओके ठीक है, इन जगहों पे आई विल कम एंड आई विल इंटरवीन इनटू द मार्केट एंड प्रोवाइड दीज सर्विसेज. सो वी विल रीड, I mean maybe in future you will read about all of this. Then comes application of cost of taxation. I'm just going to show you what is going to happen in case of, मैं explain next class में करूंगा. But remember कि ये हमारा सप्लाई था और ये डिमांड था, और हमारा अगर टैक्स लग जाता है तो टैक्स से आपका सप्लाई कर यहाँ चला जाएगा. ये हमने देखा था. हमने कहा था कि ये बर्डन हो जाएगा बायर का और ये बर्डन हो जाएगा सप्लायर का. This is what we did. Now if you dig deeper into this, can you see कि पहले कंज्यूमर सरप्लस ये था, ये चल रहा था कंज्यूमर सरप्लस. I'm just giving you a introduction into the topic. जब टैक्स लग गया तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? सोचो, व्हाट वाज कंज्यूमर सरप्लस? प्राइस वर्सेस विलिंगनेस टू पे. अगर मेरा सप्लाई कर्व इधर चला गया और मेरा नया प्राइस यहां आ गया, डोंट यू थिंक कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया? दिस इज द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस. कैन आई से B plus C इज द लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस? एंड अगर आप कह रहे हो कि आपका प्राइस इंक्रीज हो गया है बट उसमें से कुछ अमाउंट तो सरकार ले जा रही है, ये वाला अमाउंट तो सरकार ले जा रही है ना, B plus D. प्राइस का जो डिफरेंस है, इतना कंज्यूमर से ले जा रही है B और इतना प्रोड्यूसर से ले जा रही है. तो जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कितने से कम हुआ? पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था ये वाला ट्रायंगल. कैन आई से इनिशियल प्रोड्यूसर सरप्लस वाज D plus E plus F, but after the tax the producer surplus has only reduced to only F. This is what he is getting. यही मिल रहा है ना उसको. ये वाला तो सारा टैक्स में जा रहा है. तो this is what he is getting. So now it is only F. So the producer loses D plus E. Can I say the producer loses D plus E because of tax? Consumer loses B plus C, consumer loses D plus E. But इसमें से कुछ सरकार भी ले जा रही है.
सरकार ले जा रही है B प्लस डी, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, C प्लस E इज नो वन इज टेकिंग इट एंड दिस इज द लॉस टू द सोसाइटी. अगर आप मार्केट मैकेनिज्म के अलावा कहीं पर भी जाओगे तो देयर विल बी सम लॉस. टैरिफ्स का भी लॉस होगा, टैक्सेशन का भी लॉस होगा. दिस C प्लस E इज कॉल्ड एज डेड वेट लॉस. डेड वेट का एग्जाम्पल, किसी भी कमोडिटी पे टैक्स लगा दो, जो एफिशिएंट क्वांटिटी, लेट्स टेक द एग्जांपल, मैंने एजुकेशन पे आज की डेट में भी 18% का टैक्स लगाया हुआ है, एजुकेशन पे 18% का जीएसटी प्राइवेट कोचिंग्स पे. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से अगर वो ना हो, डोंट यू थिंक बहुत सारी सप्लाई और बढ़ जाएगी. अब क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है. सरकार तो इतना रेवेन्यू कमा रही है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन ले सकते थे बट नहीं ले पा रहे क्योंकि क्वांटिटी भी कम प्रोड्यूस हो रही है और प्राइसेस भी ज्यादा. तो द आइडिया व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, हम कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने जीएसटी कम करा है. सपोज पहले 18% का जीएसटी था, अब सरकार ने अगर 5% का जीएसटी लगा दिया है तो आपका सप्लाई कर पहले यहां पर था, अब यहां पर आ गया, तो उसकी वजह से लोग कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे. एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट इज, कि हम रेवेन्यू लॉस तो कर रहे हैं बट हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हमें फायदा होगा. बट इसकी पॉलिटिक्स कुछ और है, दैट you will not understand now. I had explained this today in the morning that states को बहुत नुकसान होने वाला है इससे, क्योंकि states के रेवेन्यू कम होने वाले हैं. क्योंकि इट इज सेंटर जब अपना जीएसटी कम कर रहा है तो अपना तो कम कर ही रहा है, स्टेट का भी तो कम कर रहा है. सेंटर के लिए सीजीएसटी है सिर्फ, वो उसका सिर्फ 20% उसके रेवेन्यू उसका है. स्टेट के लिए एसजीएसटी उसका 40% रेवेन्यू होता है. तो जब उसके रेवेन्यू कम होंगे तो स्टेट्स बेचारा बाकी पैसे कहां से लेके आए. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू सी. So we'll talk about all of this in the next class, and I'll give you more examples on this. All right, folks. Thank you very much.